Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about a play Loyalties by John Galsworthy. At first, we will discuss the key facts of the play, then we will look at the characters of the play. After that, we will discuss the outline of the plot in English, and at last, we will discuss the detailed summary of this play in Hindi. So let's get started. Loyalties is a play written by a British playwright and novelist John Galsworthy. It was written in 1922 and first performed the same year at St. Martin's Theatre, London, and is part of Galsworthy's The Forsyte Saga series. ये 1922 में लिखा गया था और उसी ईयर में ये सेंट मार्टिन्स थिएटर लंदन में परफॉर्म किया गया था और ये जॉन गाल्सवर्दी की जो कलेक्शन है द फोरसाइट सागा सीरीज उसका एक पार्ट है. गाल्सवर्दी डिस्क्राइब्ड इट एज द ओनली प्ले ऑफ माइन विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट नो मैनेजर विल रिफ्यूज दिस. इट इज ए 3 acts प्ले. ये 3 act का प्ले है एंड इट इज बेस्ड ऑन द रेशियल प्रेजुडिस ऑफ द क्रिश्चियंस अगेंस्ट द ज्यूज. जो कि क्रिश्चियंस के अंदर ज्यूज को लेकर प्रेजुडिस है उस पर ये बेस्ड है. Now let's look at the important characters of the play. So अगर कैरेक्टर की बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चार्ल्स विंसर. He is a 38 years old owner of Meldon Court near New Market. चार्ल्स विंसर मेल्टन कोर्ट के ओनर हैं. सेकेंड इज लेडी अडेला. शी इज 35 years old, विंसर्स वाइफ. लेडी अडेला विंसर की वाइफ हैं. कैप्टन रोनाल्ड डेंसी आर रॉनी. ही इज आ रिटायर्ड DSO. नेक्स्ट मेबल डेंसी जो कि डेंसी की वाइफ हैं. फर्डिनेंड डी लेविस जो एक वेल्दी यंग जूइस मैन है. नेक्स्ट इज जनरल कैनिंज जो कि डेंसी के सुपीरियर ऑफिसर हैं. नेक्स्ट मेजर कॉलफोर्ड डेंसी का फ्रेंड है वो. मार्गरेट ओरम आ सोसाइटी गर्ल. जैकब ट्विस्टन डेंसीज अटॉर्नी. डेंसी के अटॉर्नी इसमें जैकब ट्विस्टन है. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रिकार्डोस एन इटालियन वाइन मर्चेंट. नाउ लेट्स डिस्कस द आउटलाइन ऑफ द प्लॉट. So the play is concerned with a theft and the reactions of the various characters to that theft. Dancy, an ex-army captain, steals £1,000 from D. Lewis, who is a Jew. They are both staying as guests of Mr. Windsor at his country residence, Meldon Court. D. Lewis suspects Dancy and he tells General Canning about it. The Christians suspect Dancy but support him against the Jew. D. Lewis openly accuses Dancy of the theft in the club in the presence of numerous members of the club. Dancy is now impelled by his friends and his wife to file a defamation suit against D. Lewis. He is on the point of winning the case when the missing notes are discovered and it is revealed that they were given by Dancy to Ricardos, an Italian wine merchant. The lawyers withdraw themselves from the case. The judgment is given against Dancy and a warrant is issued for his arrest. The police come to his house to arrest him, but he ends his life to avoid disgrace. Basically, it is not a detective story. It is clear from the beginning that Dancy has stolen the money. The dramatist is interested in showing how loyalties crisscross and come into conflict with each other. Truth is concealed by the Christians because of their loyalty towards Dancy, and this finally leads to the tragedy. Now let's discuss the detailed summary of this play in Hindi. Let's start. इस प्ले की शुरुआत होती है चार्ल्स विंसर के मकान मेल्डन कोर्ट से. मेल्डन कोर्ट में बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया गया है जिसमें डी लेविस और डेंसी भी इनवाइटेड हैं और डेंसी की वाइफ मेबल भी वहां पर हैं. यहाँ मेल्डन कोर्ट में चार्ल्स विंसर और उनकी वाइफ लेडी अडेला बातें कर रहे हैं. लेडी अडेला बताती हैं कि शाम को ड्राइंग रूम में डी लेविस और डेंसी में शर्त लगी थी कि 4 फुट ऊंची अलमीरा पर कूदने वाले को 10 पाउंड मिलेंगे. डेंसी फौरन कूद गया और डी लेविस से 10 पाउंड ले लिए. विंसर इस पे कहते हैं कि डेंसी आजकल आर्थिक परेशानी में है तभी वह 10 पाउंड के लिए कूदा है. डेंसी वास्तव में एक कैप्टन था फौज में और उसे DSO का तमगा भी मिला हुआ था. अब लेडी अडेला कहती हैं कि डेंसी ने मेबल से शादी कर ली है और
लेडी अडेला मेबल को बहुत ज्यादा प्रेज करती हैं और कहती हैं कि वह बहुत ही अच्छी लड़की है और डेंसी को बहुत प्यार करती है। अब वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी डी लेविस उनका गेट नॉक करता है और कहता है कि उसके कमरे से 1000 पाउंड के नोटों की चोरी हो गई है, जो उसने अपने तकिए के नीचे एक नोटबुक में रखे थे। ये रुपये उसे अपनी एक घोड़ी या फिली, जिसका नाम रोजमेरी था, उसको बेचने से मिले थे। अब ये घोड़ी वास्तव में रोजमेरी जो है, फिली जो है ये रोजमेरी, ये एक्चुअली में डेंसी की थी पहले, बट डेंसी ने इसको बेकार समझकर डी लेविस को दे दिया था। फ्री में उसने डेंसी ने रोजमेरी को डी लेविस को दे दिया था और डी लेविस ने उस घोड़ी को बहुत अच्छे से हॉर्स रेसिंग के लिए ट्रेन किया। देन उसको एक दलाल को 1000 पाउंड में बेच दिया था। अब स्टोरी पे आते हैं कि अब इस चोरी की बात से मेल्डन कोर्ट में हंगामा मच जाता है और वहां जनरल कैनिंग जाते हैं और इस घटना की डिटेल्स लेते हैं। डेंसी और मेबल भी वहां आते हैं और इंस्पेक्टर डीड भी वहां पहुंच जाते हैं। अब डी लेविस के कमरे में डी लेविस, जनरल कैनिंग, इंस्पेक्टर डीड और चार्ल्स विंसर बैठे हुए हैं। इंस्पेक्टर डीड मामले की बहुत अच्छे से खोजबीन कर रहे हैं। तभी जनरल कैनिंग और विंसर ने इंस्पेक्टर डीड को विश्वास दिलाया कि इस मकान में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से किसी पर भी डाउट नहीं किया जा सकता है। बेहतर यह होगा कि जिसे घोड़ी बेची गई है उससे नोटों के नंबर मालूम किए जाएं। जनरल कैनिंग से डी लेविस कहता है कि अब उसकी समझ में आ गया है कि चोरी कैसे हुई है। यह रुपया डेंसी ने चुराया है, क्योंकि वह इस बात पर काफी ज्यादा नाराज था कि उसी की घोड़ी थी और फायदा डी लेविस को हो गया। अब जनरल कैनिंग को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि डी लेविस एक फौजी अफसर पर इल्जाम लगा रहा है, जो कि वहां का गेस्ट है। डी लेविस कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि रुपये डेंसी ने ही लिए हैं। इतने में ही विंसर वहां आ जाते हैं और जनरल कैनिंग विंसर से कहते हैं कि डी लेविस को विश्वास है कि रुपये डेंसी ने चुराए हैं। इस पर कैनिंग ने डेंसी को बुलाकर पूछा कि क्या उसे मालूम था कि डी लेविस को 1000 पाउंड मिले हैं। इस पर डेंसी ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जनरल कैनिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो पाया कि उसकी बाहें भीगी हुई थीं। इस पर जनरल कैनिंग को विश्वास हो गया कि डेंसी ने ही चोरी की है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और बालकनी से आते जाते वह भीग गया है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि डी लेविस के कमरे के पास में ही डेंसी का भी रूम था और डी लेविस को ये लग रहा था कि जिसने भी चोरी की है वो डिनर के टाइम ही उसके रूम में आ चुका था और जब डी लेविस नहाने गया तो वह खिड़की से निकल गया। और डी लेविस को इसलिए भी शक था डेंसी पर क्योंकि डेंसी आर्मी का ऑफिसर था और उसने 4 फुट ऊंची अलमीरा पर छलांग लगाई थी सिर्फ 10 पाउंड के लिए। इस तरह से डी लेविस को यह बिल्कुल श्योर था कि रुपए डेंसी ने ही चुराए थे। और अब जनरल कैनिंग को भी ट्रस्ट हो गया था डी लेविस पर कि रुपये डेंसी ने ही चुराए हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और बालकनी से आते जाते ही डेंसी की बाहें भीगी हुई थीं। लेकिन यहाँ पर जनरल कैनिंग चुप रहते हैं और डेंसी वापस अपने कमरे में चला जाता है। अब जनरल कैनिंग को यह डर हो गया कि कहीं डी लेविस इंस्पेक्टर डीड से डेंसी के बारे में कुछ कह ना दे। आखिर को डेंसी क्रिश्चियन था और डी लेविस ज्यू था, इसलिए कैनिंग डेंसी को बचाना चाहते थे। जनरल कैनिंग अब विंसर से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि रुपये डेंसी नहीं चुराए हैं, क्योंकि उसकी बाहें भीगी हुई थी और बालकनी में आने जाने से बाहर हो रही बारिश से उसकी बाहें भीग गई थी। लेकिन विंसर कहते हैं कि हमें इस चीज को छुपाए रखना है और किसी भी प्रकार डी लेविस का मुंह बंद रखना है। वे लोग डी लेविस से कहते हैं कि डेंसी एक शरीफ आर्मी ऑफिसर है और डी लेविस को उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अब मेल्डन कोर्ट में चोरी हुए 3 हफ्ते बीत चुके हैं और अब ये सीन है एक बहुत ही फेमस क्लब का। इस क्लब में सारे लोग, जितने भी मेंबर्स थे, वो वहां पर आए हुए थे, जो कि उस टाइम विंसर के गेस्ट थे। सभी लोग वहां पर बैठे थे। तभी लेविस सबके सामने कहता है कि उसका रुपया डेंसी ने ही चुराया है। सभी लोग डी लेविस को इसके लिए डांटते हैं और बुरा भला कहते हैं कि वह डेंसी को बदनाम कर रहा है। अब डेंसी को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि डी लेविस उस पर अपने रुपयों की चोरी का इल्जाम लगा रहा है। इस पर डेंसी कहता है कि उसके पास क्या कोई सबूत है इस चीज का। तो डी लेविस कहता है कि तुमको ये नाराजगी थी कि रोजमेरी तुम्हारी घोड़ी थी और उसको बेचकर मैंने इतना पैसा कमाया है।
और तुम एक बहुत ही अच्छे कूदने वाले हो, तो बालकनी से मेरी बालकनी में कूदकर तुमने ही मेरे कमरे से वो रुपए चुराए हैं। डेंसी वहां पर डी लेविस से एक द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहता है। इस पर वहां पर एक और कैरेक्टर है, लॉर्ड सेंट अर्थ। वो कहते हैं कि ये मामला इस तरीके से नहीं तय होगा, इसके कोर्ट में ही तय होगा। अब डेंसी डी लेविस को नीच और जीव कहता है, जिस पर डी लेविस डेंसी को चोर कहता है। डी लेविस कहता है कि अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। डी लेविस के चले जाने के बाद लोगों ने डेंसी से कहा कि क्या वह डी लेविस पर मानहानि का मुकदमा दायर करेगा। इस पर डेंसी ने कहा कि मुकदमा चलाने के लायक मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे चिंता नहीं, कहने दो उसे जो कुछ वह कहता है। यह कहकर डेंसी वहां से चला जाता है और इस बात से सभी को कंफर्म हो जाता है कि डेंसी ने ही रुपये चोरी किए हैं। और मेजर कॉलफोर्ड, जो कि डेंसी का फ्रेंड है, वो कहता है कि अगर डेंसी ने चोरी की भी है तब भी मैं उसी के पक्ष में रहूंगा। अब सीन है डेंसी के फ्लैट का। ये जो क्लब वाला सीन है उसके नेक्स्ट डे का सीन है। डेंसी की पत्नी मेबल और मार्गरेट ओरम बातें कर रही हैं। मार्गरेट मेबल को कहती है कि अगर उन्हें मानहानि का मुकदमा लड़ना है तो ट्विस्टन नाम का वकील बहुत ही अच्छा वकील है और मेबल को चाहिए कि उसे ट्विस्टन को ही अपना वकील बनाना चाहिए। इतने में ही डेंसी वहां आ जाता है और लेडी अडेला और मार्गरेट जितने भी लोग थे वो वहां से चले जाते हैं। इन सब के चले जाने के बाद मेबल डेंसी को पूछती है कि हमें मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, जिस पर डेंसी कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो यहाँ रहना ही नहीं चाहता। वो मेबल से कहता है कि क्यों ना हम नैरोबी चले जाएं। मेबल कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम इनोसेंट हो और अगर हम भाग गए तो लोग तुम्हें चोर समझ लेंगे। डेंसी कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि मुकदमा हमारे ही फेवर में हो, बट मेबल इस बात पे जोर देती है कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और यहीं पर मुकदमा लड़ेंगे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है गिलमैन, जो कि एक बहुत ही रिच ग्रोसर है। वो डेंसी के मुकदमे को बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है। अब उसी दिन उसको एक चोरी किए गए नोट का नंबर पता चलता है और उस पर उसे ख्याल आता है कि उसे 50 पाउंड का एक नोट एक आदमी देकर गया था। वो जाकर के नोट को चेक करता तो नोट का नंबर बिल्कुल सेम था जो वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, जो कि पुलिस की तरफ से आया था। उसको ये ध्यान आता है कि ये नोट उसे एक इटालियन व्यक्ति जिसका नाम रिकार्डोस था उसने उसको दिए थे और रिकार्डोस की लंदन में शराब बेचने की दुकान थी। अब गिलमैन रिकार्डोस के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये नोट उसी ने दिए थे। रिकार्डोस ये कहता है कि ये नोट उसी की दी हुई थी। अब गिलमैन रिकार्डोस को ट्विस्टन के यहाँ ले आता है। ट्विस्टन रिकार्डोस से पूछते हैं तो रिकार्डोस बताता है कि एक आदमी शादी से पहले मेरी लड़की से प्यार करता था और जब उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली, किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली, तो मैंने उसे ब्लैकमेल किया कि मैं उसकी पत्नी को ये सब कुछ बता दूंगा। इस पर उस आदमी ने बहुत ज्यादा घबरा कर ये कहा कि अगर वो उसकी पत्नी के बारे में ना बताए, इसके बदले वह कुछ भी ले सकता है। इस पर रिकार्डोस ने उससे 1000 पाउंड की मांग की थी और उस समय उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने 1 महीने का टाइम मांगा था। और जब 1 महीना बीत गया और फिर भी उस लड़के ने उसे पैसे नहीं दिए, तो रिकार्डोस ने उसको धमकी दी कि वो उसकी वाइफ को सब कुछ बता देगा। इस पर दूसरे ही दिन आकर उसने 1000 पाउंड उसे दे दिए थे। यह कहकर रिकार्डोस ने उसे एक नोट दिखाया कि ये नोट उन्हीं में से एक है। इस पर ट्विस्टन ने पूछा, सच सच बताओ, वह आदमी क्या डेंसी है? इस पर रिकार्डोस ने कहा कि वह आदमी डेंसी ही है। रिकार्डोस के जाने के बाद ट्विस्टन को बिल्कुल डैम श्योर हो गया कि डेंसी ही चोर है। अब उसी वक्त मेबल वहां पुलिस स्टेशन में आ जाती है और पूछती है कि ये मुकदमा आखिर कब खत्म होगा। ट्विस्टन मेबल से कहते हैं कि कल आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेंसी से कह देना कि कोर्ट में जाने से पहले वह मुझसे जरूर मिले। दूसरे दिन डेंसी कोर्ट जाने से पहले ट्विस्टन के ऑफिस में आता है। डेंसी कहता है कि अब कोर्ट का समय हो रहा है और हमें वहां चलना चाहिए। ट्विस्टन इस पर डेंसी को वो नोट्स दिखाते हैं और रिकार्डोस कहते हैं कि रिकार्डोस नाम का व्यक्ति उनसे मिला था। इस पर डेंसी समझ जाता है कि ट्विस्टन को मेरी चोरी के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। ट्विस्टन डेंसी से कहते हैं कि अब तक सर फेडरिक ने कोर्ट में बता दिया होगा कि हम इस केस को छोड़ रहे हैं और तुम्हारे नाम वारंट निकल चुका होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसी समय देश से निकलकर फ्रांस चले जाओ और वहां से चुपचाप स्पेन चले जाना।
वहां आजकल वार चल रहे हैं, इसलिए वहां तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी। इस पर डैन्सी कहता है कि उसे सोचने का समय दिया जाए। इतने में डी लेविस वहां पर आता है और वह कहता है कि मैं यह सुनकर आया हूं कि वारंट निकल गया है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। मुझे न अपना चोरी का रुपया चाहिए और ना ही मुकदमे का हर्जाना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि यहूदियों यानी कि ज्यूज में कितनी महानता और उदारता होती है। काफी देर तक अब डी लेविस और डैन्सी एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर डी लेविस वहां से चला जाता है और डैन्सी भी वहां से चला जाता है। अब मेबल अपने घर में चुपचाप बैठी पेपर पढ़ रही है, जिसमें मुकदमे की बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। मेबल बार बार बेहोश होती है और तभी डैन्सी वहां पर आ जाता है और मेबल पूछती कि कोर्ट में क्या उसकी जरूरत है। डैन्सी बताता है कि मुकदमा खत्म हो चुका है। मेबल के पूछने पर वह बताता है कि उन्हें असली चोर का पता चल गया है और वो कहता है कि असली चोर मैं ही हूँ। अब मेबल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो डैन्सी उस पर नाराज होता है और कहता है कि मैंने तुमसे 3 महीने पहले ही कहा था कि नैरोबी चलो, बट तुमने मना कर दिया, तुमने जिद करके मना कर दिया। इस पर मेबल कहती है कि तुमने उस टाइम क्यों नहीं बताया कि चोरी तुमने की है। डैन्सी अब मेबल के पैरों पे गिर जाता है और उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर दो। और फिर डैन्सी मेबल को सारी बातें बताता है कि उसने चोरी क्यों की और उस लड़की का भी वो सारा केस बताता है और रिकार्डोज ने उसे ब्लैकमेल किया, इसलिए उसने ये चोरी की थी। मेबल कहती है कि तुम कैसे भी हो, तुमने कुछ भी किया हो, परंतु मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ और हमेशा करूंगी, और अगर तुम्हें जेल हो जाती है तो भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मेबल और डैन्सी ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पुलिस आ जाती है। मेबल दरवाजा खोलती है और डैन्सी अपने सोने के कमरे में चला जाता है और कमरा अंदर से बंद कर लेता है। मेबल के दरवाजा खोलने पर इंस्पेक्टर डीड आते हैं और मेबल से पूछते हैं कि डैन्सी कहाँ है, मैं उन्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। और वो डैन्सी को मकान में तलाश करने लगते हैं और तभी वहां पर मार्गरेट और कॉलफोर्ड भी आ जाते हैं। अब सोने वाले कमरे में से डैन्सी इंस्पेक्टर डीड से कहता है कि अब आप अंदर आ सकते हैं, और ये कहकर वो रूम का लॉक खोल देता है। तभी अंदर से एक पिस्टल चलने की आवाज आती है और मेबल कमरे की ओर दौड़ती है। उसके पीछे इंस्पेक्टर मार्गरेट, कॉलफोर्ड सभी लोग जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि डैन्सी ने अपने आप को शूट कर लिया है, उसने अपने आप को गोली मार ली है। मेबल वहीं पर बेहोश हो जाती है और कॉलफोर्ड मेबल के नाम से एक लिफाफा पाते हैं जो कि कॉलफोर्ड के नाम था। उसमें लिखा था कि यही एक उपाय था जो अपनी इज्जत बचाने को मुझे करना पड़ा। कॉलफोर्ड, तुम मेबल का ध्यान रखना। मार्गरेट कहती है कि हमने डैन्सी के प्रति काफी वफादारी रखी, परंतु इससे कुछ भी नहीं हुआ। कॉलफोर्ड कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा मैं जी जान से पूरी करूंगा और मेबल को भली प्रकार देखभाल करूंगा। सो इस तरह से प्ले का एंड होता है। So friends, if you liked this video, then do subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get every notifications of my upcoming videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।